एंड वेलकम टू रियल हाउस इंजीनियरिंग। इस वीडियो में डेटा लिंक लेयर के बारे में डिस्कस होगा। डेटा लिंक लेयर उतना ही इंपॉर्टेंट है या सेम एज योर ट्रांसपोर्ट एंड नेटवर्क लेयर। सो विदाउट डूइंग एनी लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो डेटा लिंक लेयर एक्चुअली होता क्या है या फिर डेटा लिंक लेयर का एक्चुअल काम क्या है इन केस ऑफ योर OSI मॉडल। सो this is a network, right? And this is another network, okay? And many hosts or many system are present inside a network. You can say this is a LAN or one wide area network, whatever. So this is network 1 and this is network 2, right? Inside this also hosts are present, okay? So in the before video I have explained like from this network, इस network से इस network को from network 1 to network 2 if I want to send some message, then who will do the job? Who will do the job? The job will be done by network layer. ओके एक नेटवर्क से दूसरा नेटवर्क को व्हेन वी वांट टू सेंड द मैसेज द जॉब विल बी डन बाय नेटवर्क लेयर. ओके बट if I want to send the message from within a network, within a LAN, from this host to this host, if I want to send the message, then the job will be done by whom? The job will be done by data link layer. Data link layer. Okay, so within a network if I want to pass the message, the job will be done by data link layer. Outside the network the job will be done by network layer. But the next thing is network 1, okay, and from this host the message is passing to this host in network 2. Okay, while passing the message passing directly? No, the message is going to many nodes or many routers. Like in the middle there is a router, another router, okay, from this host the message is passing to this router, again to this router, again to this router, finally it is reaching to the destination. So in the middle many routers, switches, many machines will be there through which nodes will be there or hope will be there through which the message will pass, then only it can finally reach the destination. So from a node, another node, from this node, another node, from this node, another node. So the node to node delivery is the work of data link layer. Node to node delivery. This is a very important point in case of your data link layer. What it provides? Node to node delivery. Within a host, okay, within a network, the data link layer pass the messages, and outside the network the data link layer pass the message from one node to another node, like from this node to this node, from this node to this node. Each node, each intermediate node, the message is passed through the help of data link layer. So this is the main job of data link layer. So you can say the data link layer is called as your node to node delivery. Okay, and in case of your network layer, the job is to transfer from this network to this network. So it is called as your host to host delivery. Okay, I hope you are understanding the point. What is the main work of data link layer? That is your node to node delivery. Okay, now after this is the basic concept of data link layer, right? This is the basic concept of data link layer. Now after this, next point of data link layer is, so you can see that data link layer is receiving the message from the upper layer, that is your network layer. Okay, in case of your network layer the messages are dealt in case like your packets. Okay, network layer क्या करता है, messages को small packets में divide करता है. तो data link layer receives those packets, ठीक है, उस packet को data link layer receive करता है, और data link layer का काम क्या है ना, उस packets को frame में divide करना. Like it receive the packets and it divides makes some changes in the packets, not in the messages, some changes in the header part. Like it receive a packet, this is a packet, okay, received by data link layer. तो क्या करता है ना, उस मैसेजेस को जैसे डेटा को तो एज इट इज रखता है, लेकिन वो हेडर पार्ट में या फिर ट्रेलर पार्ट में, ये हो गया हेडर, ये हो गया ट्रेलर, तो इस हेडर में क्या करता है, सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस को ऐड करता है, ट्रेलर में भी सम कंट्रोल बिट्स को ऐड करते हैं, और एक फ्रेम फॉर्म करता है, एक पैकेट को एक फ्रेम, दिस इज अ फ्रेम, दिस इज अनदर फ्रेम, दिस इज अनदर फ्रेम, इस तरह से इट मेक्स फ्रेम फॉर्मेट. ठीक है, एक फ्रेम फॉर्मेट में उसे कन्वर्ट करता है. आफ्टर दैट इट पास द फ्रेम्स टू फिजिकल लेयर. ठीक है, तो क्या होता है जब डेटा जब क्या होता है फ्रॉम नेटवर्क लेयर से जब रिसीव करता है तो वो फ्रेम फॉर्मेट में पैकेट को फ्रेम में कन्वर्ट करता है, फिर उसको फिजिकल लेयर में ट्रांसफर करते हैं. अगर
इन द रिवर्स केस इफ आई से, अगर वो डेटा को फिजिकल लेयर से रिसीव किया तो क्या करेगा? फिजिकल लेयर किस पे काम करता है? बिट्स पे काम करता है। किस पे काम करता है? बिट्स पे काम करता है। तो फिजिकल लेयर में वो बिट्स को लेगा, इट विल टेक द बिट्स एंड इट विल अगेन कन्वर्ट दिस बिट्स इनटू द फ्रेम्स बाय एडिंग दिस हेडर एंड ट्रेलर एज आई हैव एक्सप्लेन। तो फिर इस बिट्स को एक एक फ्रेम में डिवाइड करेगा। ईच फ्रेम का अपना एक हेडर होगा, अपना एक ट्रेलर होगा, हेडर में सोर्स, डेस्टिनेशन और भी कंट्रोल बिट्स होगा। फिर उस फ्रेम को वो पास करेगा नेटवर्क लेयर। तो बोथ साइड डायरेक्शन में आई हैव एक्सप्लेन, नेटवर्क लेयर से डेटा लिंक लेयर पैकेट को रिसीव करेगा, फिर फ्रेम में कन्वर्ट करेगा। अगर फिजिकल लेयर से लेगा तो बिट्स फॉर्म में लेगा, फिर उसको फ्रेम में कन्वर्ट करेगा। ओके, ये जो पैकेटिंग, ये जो फ्रेम, इस तरह से द फ्रेम जो फॉर्म करता है, लाइक हेडर, डेटा ट्रेलर और कंट्रोल बिट्स जो ऐड करता है, वो एक प्रोटोकॉल या फिर एक रूल को फॉलो करता है। इट फॉलोज सम प्रोटोकॉल्स और रूल्स टू कन्वर्ट द पैकेट्स और द बिट्स टू दिस फ्रेम फॉर्मेट सो दैट इट कैन पास द मैसेज इजीली थ्रू ईच राउटर और यू कैन से थ्रू ईच नोड। दिस इज अ नोड। एक नोड से दूसरा नोड को ट्रांसफर करने के लिए विदाउट एनी एरर इजीली मैसेज पास हो जाए, उसको एक प्रोटोकॉल, इस फ्रेम जो फॉर्म करेगा उसमें एक प्रोटोकॉल और रूल्स लगा रहेगा। व्हाट आर द प्रोटोकॉल्स? दीज आर द प्रोटोकॉल्स: पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, सिंक्रोनस डेटा कंट्रोल प्रोटोकॉल, हाई लेवल डेटा कंट्रोल प्रोटोकॉल, स्लिप, सीरियल लाइन इंटरफेस प्रोटोकॉल। तो ये जो प्रोटोकॉल्स हैं, इन प्रोटोकॉल्स को कोई एक प्रोटोकॉल अप्लाई होगा, नहीं एक फ्रेम में इधर पॉइंट टू पॉइंट अप्लाई होगा, नहीं तो एसडीएलसी, नहीं तो एचडीएलसी, नहीं तो स्लिप, राइट। तो एक प्रोटोकॉल अप्लाई करेगा और फिर उसको फ्रेम फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, फिर वो अपर लेयर या फिर लोअर लेयर को मैसेज पास करेगा। ठीक है, प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, बिकॉज अगर वो एक प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करेगा, लाइक नेटवर्क लेयर का अपना एक प्रोटोकॉल है, विल फॉलो द प्रोटोकॉल बिकॉज नेटवर्क लेयर का अपना एक प्रोटोकॉल है। ओके, तो नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल को अगर फॉलो करके वो नोड टू नोड डिलीवरी करेगा तो मैसेज सही से रिसीव नोड टू नोड पास नहीं हो पाएगा। इसीलिए फॉर द ईज ऑफ द मैसेज वो अपना ही प्रोटोकॉल फ्रॉम दीज एनी प्रोटोकॉल्स इट विल ऐड टू दिस फ्रेम्स, फिर वो क्या करेगा तो नोड टू नोड या फिर राउटर से राउटर मैसेज को पास करेगा। ठीक है, ये ओवरव्यू हो गया। ईच जो प्रोटोकॉल से उसका कितना हेडर है, क्या डेटा है, क्या ट्रेलर है, उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है। तो वो तो जब प्रोटोकॉल्स के बारे में डिटेल्स व्हेन वी विल गो वी विल अंडरस्टैंड इट। फॉर नाउ डेटा लिंक लेयर का ओवरव्यू क्या है दैट आई वांट टू डिस्कस। अगर कोई इफ एनीवन विल आस्क व्हाट इज द यूज ऑफ प्रोटोकॉल, सो यू कैन एक्सप्लेन ओके दिस इज द यूज ऑफ प्रोटोकॉल। ठीक है, फ्रेमिंग टाइम में यूज होता है। ठीक है, सो प्रोटोकॉल्स हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो है डेटा लिंक लेयर जो है क्या है, लॉजिकल लिंक। दो पार्ट में डिवाइड है, एक है लॉजिकल लिंक कंट्रोल, एक है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, सो जो लॉजिकल लिंक कंट्रोल का जो काम है वो क्या वर्क करता है, वो एरर, मेन वर्क उसका है एरर एंड फ्लो कंट्रोल। लॉजिकल लिंक कंट्रोल क्या करता है, एरर हैंडलिंग करना या फिर फ्लो हैंडलिंग करना, वो काम है लॉजिकल लिंक कंट्रोल का। मीडिया एक्सेस कंट्रोल का मेन काम क्या है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल का मेन काम है फ्रेमिंग, एड्रेसिंग और एक्सेस कंट्रोल। जो तीन फ्रेमिंग, एड्रेसिंग और एक्सेस कंट्रोल है वो काम है मीडिया एक्सेस कंट्रोल का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ये जो फंक्शनलिटीज है डेटा लिंक लेयर्स का। एक तो प्रोटोकॉल्स आई हैव एक्सप्लेन, और फ्रेमिंग, एड्रेसिंग, एरर और एक्सेस कंट्रोल, ये क्या होता है। सो फ्रेमिंग आई हैव टोल्ड यू, लाइक वो पैकेट रिसीव करेगा, फिर उसको स्मॉल, लाइक बड़ा पैकेट रिसीव करेगा, उसको स्मॉल स्मॉल फ्रेम्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट कम टू योर एड्रेसिंग। एड्रेसिंग क्या होता है, सो नेटवर्क लेयर में भी एड्रेसिंग का यूज होता है, लेकिन वो क्या एड्रेसिंग का यूज होता है, लॉजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस का यूज होता है, लॉजिकल एड्रेस। इन केस ऑफ योर डेटा लिंक लेयर क्या एड्रेस यूज होता है, फिजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस।
दिस इज द इम्पॉर्टेंस इन योर केस ऑफ एड्रेसिंग इन योर डेटा लिंक लेयर, ठीक है। तो एज आई टोल्ड यू इन द हेडर पार्ट में क्या करेगा, सोर्स का एड्रेस, डेस्टिनेशन का एड्रेस ऐड करेगा। तो कंफ्यूजन माइंड में आएगा कि नेटवर्क लेयर में भी तो सोर्स डेस्टिनेशन एड्रेस ऐड होता है, फिर यहाँ पे व्हाट इज द नीड टू ऐड हियर द एड्रेस। तो नेटवर्क लेयर में जो एड्रेस यूज होता है वो क्या होता है, लॉजिकल एड्रेस यूज होता है, आईपी एड्रेस यूज होता है, जो एक से नंबर रहते हैं 124.74.56.12 व्हाटएवर। लेकिन जब डेटा लिंक लेयर में आ गया तो क्या एड्रेस का यूज होता है, फिजिकल एड्रेस का यूज होता है। लाइक क्या, व्हाट इज अ फिजिकल एड्रेस। सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, लेट्स सी, ये एक सिस्टम हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये एक सिस्टम हो गया। तो जब कंप्यूटर मैन्युफैक्चर होता है उस टाइम उसको एक एड्रेसिंग दिया जाता है, वॉट एवर 23 MSC 23A लाइक दिस, उसका एक परमानेंट एड्रेसिंग होता है, ठीक है। वो एड्रेस को क्या बोलते हैं, फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस इट इज गिवन थ्रू NIC, दैट इज योर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फिजिकल एड्रेस। फिर इसका भी, इस कंप्यूटर का भी अपना ही एक 33 MSC 210 व्हाटएवर एक फिजिकल एड्रेस होता है। तो डेटा लिंक लेयर क्या करता है, इस फिजिकल एड्रेस पे जो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जो सिस्टम को जो एड्रेसिंग अलॉट होता है, उस फिजिकल एड्रेस पे क्या करता है, डेटा लिंक लेयर काम करता है, उस एड्रेस को वो ऐड करता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया एड्रेसिंग अभी क्या है, इस मेन काम क्या है, फिजिकल एड्रेस को ऐड करना। नेक्स्ट इज योर एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल। व्हाट इज एरर कंट्रोल, लाइक एरर डिटेक्ट करना। और फ्लो कंट्रोल क्या है कि ओवरफ्लो नहीं हो जाए, लाइक एक एक होस्ट का कैपेसिटी जितना भी है, लाइक एक होस्ट का कैपेसिटी है 500 बाइट्स, उससे ओवरफ्लो मैसेज नहीं हो जाए, लाइक 1000 बाइट्स इट कैन नॉट हैंडल। सो वो काम है किसका, एरर फ्लो कंट्रोल का। तो कंट्रोल किस मेथड के थ्रू से डेटा लिंक लेयर करता है, तो मेथड्स आर stop and wait method, and next is your sliding window method। सो ये जो स्टॉप एंड वेट मेथड है और स्लाइडिंग विंडो मेथड है, ये मेथड को फॉलो करके फ्लो कंट्रोल डेटा लिंक लेयर परफॉर्म करता है। तो द डिटेल्स ऑफ ईच हेडिंग इन अनदर वीडियो। इतना अभी फॉर दिस इज ओवरव्यू ऑफ डेटा लिंक लेयर। तो अभी के लिए इतना यू शुड रिमेंबर फ्लो कंट्रोल किसके थ्रू से करता है, स्टॉप एंड वेट मेथड एंड स्लाइडिंग विंडो मेथड, ठीक है। नेक्स्ट एरर कंट्रोल किसके थ्रू से करता है, स्टॉप एंड वेट ARQ and sliding window ARQ। ओके, नेक्स्ट किससे करता है, स्टॉप एंड वेट ARQ एंड स्लाइडिंग विंडो ARQ थ्रू से क्या करता है, एरर कंट्रोल करता है। व्हाट इज स्टॉप एंड वेट ARQ एंड स्लाइडिंग विंडो ARQ, ठीक है, उसके थ्रू से एरर कंट्रोल करता है। फ्लो कंट्रोल किससे करता है, स्टॉप एंड वेट मेथड एंड स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के मेथड से। एरर कंट्रोल किस मेथड से करता है, स्टॉप एंड वेट ARQ एंड स्लाइडिंग विंडो ARQ। इसके बारे में जो डिटेल्स है वो पर्टिकुलर इसका वीडियो जब व्हेन आई विल एक्सप्लेन, तो आई विल एक्सप्लेन इट, ओके। नेक्स्ट हो गया एक्सेस कंट्रोल किसके थ्रू से करता है, एक्सेस कंट्रोल करता है CSMA CD, CSMA CA और क्या है, अलोहा। तो ये जो मेथड्स है, ठीक है, ये जो मेथड्स है, ये मेथड्स के थ्रू से क्या करता है, एक्सेस कंट्रोल करता है। कैरियर सेंस मीडिया एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन, कैरियर सेंस मीडिया एक्सेस कोलिजन अवॉइडेंस और अलोहा, ये जो मेथड है इससे क्या करते हैं, एक्सेस कंट्रोल करते हैं। सो एक्सेस कंट्रोल बिफोर, इसके बारे में जो डिटेल्स है वो डिफरेंट वीडियो में होगा। अभी एक्सेस कंट्रोल नाउ यू लाइक यू नो कि एरर क्या होता है, यू नो व्हाट इज द एरर, लाइक एक मैसेज में कुछ एरर आ गया तो ऐसा एरर बोलते हैं। फ्लो कंट्रोल का होता है तो ओवरफ्लो हो गया, एक होस्ट अगर ओवरफ्लो हो गया तो उसको फ्लो कंट्रोल बोलते हैं। लेकिन अभी एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, एक्सेस कंट्रोल मीन्स ये एक मीडिया है, ठीक है, यहाँ पे एक होस्ट 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 है, ये एक सिंगल मीडिया है, ठीक है, 4 होस्ट है, ठीक है, सब लोग इसमें, एवरीवन वांट्स टू सेंड द डेटा इन दिस मीडिया। सो ये क्या करेगा ना, ये जो होस्ट है ये पहले सेंस करेगा कि इज द मीडिया आइडल,
अगर आइडल होगा तो ये मैसेज पास करेगा, ये भी सेंस करेगा, इज द मीडिया आइडल, अगर आइडल होगा तो मैसेज पास करेगा, ये भी सेंस करेगा, ये भी सेंस करेगा। सो अगर मीडिया आइडल होगा तभी मैसेज पास करेगा, नहीं तो मैसेज पास नहीं करेगा। ओके, तो ये जो कैरियर सेंस करता है, ये काम ये कौन करता है? CSMA ये जो कैरियर सेंस करता है कौन करता है? CSMA CD पर, CSMA कैरियर सेंस मीडिया एक्सेस, CSMA CD, ठीक है, कैरियर सेंस मीडिया एक्सेस डिटेक्शन, कॉलिजन डिटेक्शन। अगर ये भी मैसेज पास करेगा, ये भी मैसेज पास करेगा, अगर बोथ टाइम में दोनों मैसेज पास करेंगे तो मेथड क्या होगा? कॉलिजन हो जाएगा। व्हाट विल हैपन? अ कॉलिजन विल हैपन बिटवीन टू मैसेजेस। इसीलिए एक्सेस कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ योर डेटा लिंक लेयर। तो उसको कौन हैंडल करता है? CSMA CD और CSMA CA और है प्योर अलोहा। ये जो मेथड से ये हैंडल करता है एक्सेस कंट्रोल का। तो और प्रोटोकॉल्स ऑलरेडी हैव एक्सप्लेन्ड ड्यूरिंग योर हेडर पार्ट। ओके, तो फंक्शनलिटीज है फ्रेमिंग, एड्रेसिंग, एरर एंड फ्लो कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल, ये फंक्शनलिटीज है डेटा लिंक लेयर का। ठीक है, होता है व्हाट इज द मेन बेसिक वर्क ऑफ डेटा लिंक लेयर? दैट इज योर नोड टू नोड डिलीवरी। एंड डेटा लिंक लेयर क्या है? फ्रेम में मैसेज पास करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड है, दैट इज योर लॉजिकल लिंक कंट्रोल एंड योर मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ओके, सो ये टोटल ओवरव्यू हो गया डेटा लिंक लेयर का। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।